Hello students, myself Bafna ma'am. Last class we had dealt about Limited Liability Partnership Act 2008. So we had discussed about the concept, nature, advantages of LLP and salient features of LLP. Today we will see the difference between LLP and a partnership firm. Now you already know LLP means Limited Liability Partnership. So, in a partnership firm that is registered under Indian Partnership Act 1932, every partner is liable jointly and severally. See here what it is being told here. In a partnership firm that is different from LLP. This is I am discussing about the partnership firm. In a partnership firm registered under Indian Partnership Act, every partner shall be liable jointly and severally, and his liability is unlimited, which means that personal property of the partners can also be attached. Okay, see, whatever the personal property is there, see, every partner is liable. He will be liable jointly and severally. That means here his liability is unlimited. In partnership, his liability is unlimited, and personal property of the partners can also be attached for the satisfaction of the debts. Okay. In addition to the capital contribution by the partners of the firm. See here, this is the main point. In addition to the capital contributed by the partners of the firm. Now here, what is here in LLP? However, in LLP, the liability of the partner is limited only to his agreed contribution. Main thing here is agreed contribution, and no partner is liable on account of the independent or unauthorized act of other partner. See, main here difference is there. Independent or unauthorized act of other partners. That means in LLP, limited liability partner, all individual partner are shielded from the joint liability created by another partner wrongful act or misconduct. Okay, so there is a individual partners are shielded, यानी एक पर्दा है उन पे from the joint liability created by another partner. अगर another partner ने कुछ wrongful act किया है, misconduct किया है, तो moreover the provision of Indian Partnership Act 1932 are not applicable in LLP. So LLP में Partnership Act applicable नहीं है. ओके हियर. सो पार्टनरशिप फर्म का आपको मालूम है, तो पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी है वो जॉइंटली है और सेवरली है. तो यहाँ पे जो लायबिलिटी है इन पार्टनरशिप फर्म में, जो लायबिलिटी है पार्टनरशिप फर्म में, तो उसमें क्या है, उनका जो लायबिलिटी है अनलिमिटेड है. ओके, तो डोंट फॉरगेट दिस, अनलिमिटेड. तो कुछ भी पार्टनरशिप फर्म में अगर डेट्स है यानी उधारी है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स विल ऑल्सो गेट अटैच्ड. ओके, सी द मेन डिफरेंस इज हियर. बट LLP में ऐसा कुछ नहीं है. तो देर इज ए शील्ड, इंडिविजुअल पार्टनर्स आर शील्डेड, यानी एक पर्दा है उनमें, तो जॉइंट लायबिलिटी नहीं है यहाँ पे. तो जिसने रॉन्गफुल एक्ट किया है, मिसकंडक्ट किया है, उसका जिम्मेदार वही है. एंड दिस प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल नॉट अप्लाई हियर. ओके, सो वी विल सी नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LLP एंड ए कंपनी. Here, internal structure of LLP is regulated by a contractual agreement between the partners. जो internal affairs है LLP के, it is regulated by agreement है, agreement between the partners. जो agreement है between the partners वो LLP का है. अभी कंपनी में difference between LLP and a company. तो लास्ट में हम लोगों ने देखा डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड LLP. यहाँ पे LLP एंड कंपनी. कंपनी में क्या है, इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज रेगुलेटेड बाय कंपनीज एक्ट. जो भी कुछ इंटरनल अफेयर्स है, जो है स्ट्रक्चर है, जो इनको जॉइंट स्टॉक है कंपनी, तो वो अपने हिसाब से नहीं चलता, वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलता है. ओके, Now second one is management ownership divide is not there in LLP. यहाँ पे ownership divide is not there in LLP. यहाँ पे ओनर का ओनरशिप की डिवीजन नहीं है LLP में. और कंपनी में क्या है, द मैनेजमेंट ओनरशिप इज डिवाइडेड इनहेरेंट इन ए जॉइंट स्टॉक कंपनी. ओके,
Here there is a joint stock company है. The third is LLP has more flexibility and lesser compliance requirement. यहाँ पे LLP में more flexibility बहुत है firm में, and lesser compliance requirement, जो requirement ही नहीं है, जो इनकी requirement है वो less है. ओके. और कंपनीज एक्ट में क्या है? कंपैरेटिवली कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव लेसर फ्लेक्सिबिलिटी. यहाँ पे लेसर फ्लेक्सिबिलिटी लेसर है एंड मोर कंप्लायंस है, यानी कॉम्प्लिकेशन यानी कंप्लायंसेस आपको कंप्लाई करना है, जो रिक्वायरमेंट्स है जो देना है वो सब ज़्यादा है यहाँ पे, आर मोर, इट इज़ मोर. ओके. सो द डिफरेंस बिटवीन LLP एंड अ कंपनी. नो हियर वी विल सी no partners and designated partners. Who are partners and designated partner? What do you mean by partner? Partner in relation to a limited liability partnership means any person who becomes a partner in the limited liability partnership in accordance with the liability partnership agreement, he can become an partner. Partnership limited liability में अगर इंसान किसी को बनना है उस फर्म में तो agreement के हिसाब से होगा वो. Okay? So there should be an agreement in accordance with the liability partnership agreement. Now eligibility क्या है इसकी? eligibility any individual or body corporate may, ये because नहीं है, ये become है, may become a partner in LLP. कोई भी इंसान, कोई भी बंदा या बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम ए LLP, एनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर हो सकता है अगर if he is of a sound mind. Okay, sorry. If he is of a sound mind and is not insolvent and has not applied for the adjudication of insolvency. Okay, according to section 5. So eligibility ये होना चाहिए. कोई भी इंसान बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, साउंड माइंड है, not insolvent hai, has not applied for adjudication for insolvency, the eligibility of a designated partner. Okay. So second point is here, minimum number of partners. The LLP shall consist of at least 2 partners. Section 6. Okay. So there is no restriction on the maximum number of the partners. Maximum number of the partners में कुछ भी restrictions नहीं है. Okay. Here next, in a situation where number of partner is reduced to 1, अगर रिडक्शन हो गया, 2 में से 1 का रिडक्शन हो गया, such LLP carries on business with such sole partner for more than 6 months. अगर एक इंसान उसमें से निकल गया है तो जो सोल पार्टनर है, जो अकेला पार्टनर है, अगर इफ़ ही कैरीज मोर देन 6 मंथ्स, जो 6 महीने से भी ज़्यादा अगर वो पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा है एंड हैविंग नॉलेज ऑफ सच सिचुएशन, उसको नॉलेज है वो सिचुएशन की, शैल बी लायबल पर्सनली फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द LLP इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड. ओके. उस पीरियड में वो पर्सनल लायबल होगा कुछ भी जो एक्ट होगा. नाउ designated partner. What is designated partner? Minimum number of the designated partner. Every LLP shall have at least 2 designated partners. मैंने पहले ही बोला designated partners का मतलब क्या है. जैसे कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर्स होते हैं तो उसी हिसाब से LLP में designated partners होते हैं. तो उसका रोल हो सकता है थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन designated partners और डायरेक्टर्स एक ही पोजीशन में रहते हैं. ओके. So the minimum number of the designated partners, every LLP shall have at least 2 designated partners who are individuals, जो 2 इंसान हैं, and at least one of them must be resident of India. 2 में से एक resident of India होना चाहिए. Okay. So however, in case of LLP in which all partners are body corporates or in which one or more partners are individuals and body corporate, at least 2 individuals who are partners of LLP or nominees of such bodies shall act as a designated partners. समझा ना? यहाँ पे क्या लिखा है? In case of LLP in which all partners are body corporate, जितने भी पार्टनर्स है सब बॉडी कॉर्पोरेट है. सी
all partners are body corporate, or in which one or more partners are individual and body corporate, इनमें से या तो फिर एक से भी ज़्यादा अगर पार्टनर अगर एक से भी ज़्यादा पार्टनर, more partners are individuals and body corporate, at least 2 individual who are partners of such LLP, अगर 2 individual partners है LLP के और nominees और या तो nominees है of such bodies shall act as a designated partners. Okay, 2 individuals, they will act as a designated partners. Okay, next है consent. An individual should not become a designated partners in an LLP unless he has given his prior consent to act as such to the LLP in the prescribed form and manner. The consent कैसे होना चाहिए इंडिविजुअल पार्टनर का? कोई भी इंसान डेजिग्नेटेड पार्टनर बन नहीं सकता अनलेस ही हैज़ गिवन हिज प्रायर कंसेंट. उसको कंसेंट देना जरूरी है टू एक्ट सच टू द LLP. ओके, तो उसका कंसेंट देना जरूरी है. जो कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर उसका कंसेंट देना जरूरी है और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर ऑफ सेक्शन 7. ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर्स टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार. यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में बोला गया है. जो पर्टिकुलर्स टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार. सी द पर्टिकुलर ऑफ एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु अग्रीज टू एक्ट एज सच शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट. अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बोलता है कि भाई मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स उसका कंसेंट मिल गया है कि मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ, तो उसका पर्टिकुलर्स जितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं हु अग्रीज टू एक्ट, अगर वो अग्री कर रहा है कि मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर बन रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, उसका जो फॉर्म है वो फाइल करेगा रजिस्ट्रार में विद इन 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट. अगर आज अपॉइंटमेंट हुआ है तो विद इन 30 days उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी. See, an individual who is eligible to become a designated partner has to satisfy prescribed terms and conditions. कुछ terms and conditions रहने से ही वो individual यानी जो इंसान designated partners बन सकता है. तो अभी any partner may become or cease to become a designated partner in accordance with the LLP agreement. या तो वो बन सकता है या नहीं बन सकता है. वो कैसे हो सकता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट ही वो बन सकता है. इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट. ओके, सी इट ऑल्सो सीक्स टू एम्पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड है अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड बाय एन इंडिविजुअल टू बिकम ए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो प्रिस्क्राइब्ड टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर वो फुलफिल हो सकता है बाय एन इंडिविजुअल, then that individual can become a designated partner. Okay, now 5th point is designated partner identification number. See, जो designated partner है, every designated partner of LLP must obtain a DPIN form from the central government. He should obtain, यानी इंसान जो designated partner है वो central government से क्या obtain करना चाहिए? पिन यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर उसके पास होना चाहिए. ओके, नो नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटीज ऑफ ए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लायबिलिटीज क्या है? ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल एक्ट्स. नो, ही विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल द एक्ट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. मैटर्स एंड थिंग्स एज आर रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द LLP. कुछ भी मैटर है, कुछ भी थिंग्स है दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डन बाय LLP इन रेस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट. ओके, द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, ही इज लायबल टू ऑल पेनल्टीज imposed on the LLP for any contravention of those provision. Designated partner will be liable and penalties imposed on LLP. अगर उसने कुछ provisions को contravention किया है तो he will be liable. Okay? So next point, filing of vacancy. अभी vacancy designated partner की है अगर. The act has provided a 30 days prior
पीरियड ऑफ फाइलिंग अप ए वैकेंसी ऑफ ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो 30 डेज दिया है, तो वैकेंसी है डेजिग्नेटेड पार्टनर की, तो 30 डेज में वो वैकेंसी फुलफिल होनी चाहिए। हाउएवर इफ नो डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अपॉइंटेड और इफ एनी टाइम देर इज ओनली वन डेजिग्नेटेड पार्टनर, each partner of the LLP shall be deemed to be a designated partner। अगर एक ही एक designated partner है दो में से, तो एक सीट खाली है, तो ईच पार्टनर ऑफ LLP, जो जितने भी पार्टनर है LLP में, shall be deemed to be a designated partner, उनको ही designated partner, जितने जितने पार्टनर है सब, अगर 3-4 है मान लो, 3-4 पार्टनर है LLP में, तो सब डेजिग्नेटेड पार्टनर माने जाएंगे जब तक उसकी वैकेंसी फिल नहीं होगी तब तक। ओके, नाउ व्हाट इज द पेनल्टी? द LLP, the limited liable partner and its every partner is liable for punishment of a fine ranging from 10,000 to 5 lakh for contravention of section 7। section 7 में अगर कुछ contravention हुआ है तो he will be liable। okay, that is for failure of appoint designated partner as per rules। as per rules designated partners नहीं हुआ है तो देर इज ए फाइन ऑफ 10,000 to 5 lakh। सेकेंड पॉइंट इज हियर, पेनल्टी क्या है? द LLP एंड इट्स एवरी पार्टनर आर लायबल फॉर द पनिशमेंट ऑफ ए फाइन रेंजिंग फ्रॉम 10,000 to 1 lakh फॉर द वायलेशन ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 4, सेक्शन 7 सबसेक्शन 5, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 ऑफ LLP एक्ट। दैट इज फॉर ए फेलियर टू फाइल पर्टिकुलर्स टू रजिस्ट्रार। अगर किसी पार्टनर ने, LLP पार्टनर ने यानी डेजिग्नेटेड पार्टनर ने, अगर उस सब सेक्शन, जो जितने सारे सेक्शंस यहाँ पे बोले हैं, अगर वो फेल्यूर हो गया है पर्टिकुलर्स को फाइल करने के लिए रजिस्ट्रार को, नॉट फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ फुलफिल नहीं हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फेल्यूर इन कंप्लायंस, अगर कुछ फेल्यूर है कंप्लायंस में, देन ही हैज़ टू पे 10,000 to 1 lakh penalty। It is according to the registrar। तो you have to fulfill all the eligibility criteria in failure of compliance, तो 1 lakh रुपये तक का आपको हर्जाना भर सकता है। So this is the penalty according to section 10। Now we will see incorporation of LLP। incorporation of LLP कब होता है? आपने मान लिया आपको अभी एक LLP फर्म खोलना है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म खोलना है। जब इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है तब आपको, अगर आपने कुछ कंप्लायंस दिया है, कुछ रिक्वायरमेंट, जितने जितने पार्टनर्स है, जो जो रिक्वायरमेंट है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन करवाया है, देन रजिस्ट्रार ऑफिस विल गिव यू वन सर्टिफिकेट दैट इज कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेशन। अभी आपकी इनकॉर्पोरेशन LLP फर्म चालू हो गई है। तो उसके लिए कितने लोग चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ पर्सन, 2 or more पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फाइल एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। सी यहाँ पे देखो, डॉक्यूमेंट, दो से ज़्यादा लोग आपको इनकॉर्पोरेशन के लिए डॉक्यूमेंट फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ए LLP विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रेशन के पास जाके रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी इन द स्टेट इन विच रजिस्टर ऑफिस ऑफ द LLP इज सिचुएटेड। ओके, नाउ फीस क्या है? द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मस्ट बी फाइल्ड इन द मैनर, जो आपको अभी इनकॉर्पोरेशन करना है, यानी आपकी अभी LLP फर्म चालू करना है, तो इनकॉर्पोरेशन यानी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मस्ट बी फाइल्ड इन द मैनर एंड विद द फीस प्रिस्क्राइब्ड। जो मैनर बोला है, जो फीस प्रिस्क्राइब्ड बोली है बाय ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, उसमें जाके उसी मैनर से, उसी फीस से आपको भरना है। Now next, now what is next? Statement of compliances। क्या statement है? There shall be filed along with the incorporation document। क्या क्या statement है? जो भी statement है that shall be filed along with the incorporation document, a statement in the prescribed form that all requirements of the LLP Act and rules have been complied with। सब रूल्स जो है, सब रेगुलेशन से आर कंप्लाइंट विथ। द स्टेटमेंट इज टू बी मेड बाय आइदर, स्टेटमेंट कौन दे सकता है? आइदर एडवोकेट और ए कंपनी सेक्रेटरी और ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और ए कॉस्ट अकाउंटेंट
हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द LLP, जो LLP तैयार करने के लिए है वो ही डॉक्यूमेंट स्टेट करेगा, और बाय एनीवन हु सब्सक्राइब हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, और कोई और बंदा हो सकता है आपको सब्सक्राइब करना है तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस ए है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो प्रिस्क्राइब्ड बोला है उसी फॉर्म में होना चाहिए। स्टेट द नेम ऑफ द LLP, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर है उनके नाम होने चाहिए। तो आपके बिजनेस क्या है, क्या बिजनेस करने वाले हैं, वो स्टेटमेंट देना चाहिए उसका। स्टेट द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर ऑफिस ऑफ LLP, जो एड्रेस है रजिस्टर ऑफिस का आपको वो देना है LLP। द स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ईच पार्टनर, आपको स्टेटमेंट देना है ईच पार्टनर का नेम एंड एड्रेस। हु आर द पार्टनर्स ऑफ द LLP ऑन इनकॉर्पोरेशन, LLP इनकॉर्पोरेशन करने के लिए उनका नेम एड्रेस सब होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु आर टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, जो कोई इंसान डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसके नाम और एड्रेस आपको देना है। और कंटेन सच अदर इंफॉर्मेशन, या और कुछ अदर इंफॉर्मेशन है कंसर्निंग द प्रपोज्ड LLP एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब और कुछ है तो अदर इंफॉर्मेशन आपको देनी है। ओके, नेक्स्ट इज पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अगर आपने कुछ फॉल्स स्टेटमेंट दिया है तो उसकी पेनल्टी क्या होगी। इफ ए पर्सन मेक्स फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, अगर कुछ स्टेटमेंट दिया है जो कंप्लायंस करते करते फॉल्स स्टेटमेंट दिया है तो अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज 1 ही शैल बी पनिशेबल विथ द इम्प्रिजमेंट ऑफ 2 years। 2 years का इम्प्रिजमेंट हो जाएगा विथ ए फाइन रेंजिंग फ्रॉम 10,000 to 5 lakh rupees। ओके, so all necessary compliance should be given, no false statement should be given। Now incorporation by registration section 12 का क्या बोलते हैं, registration of LLP, registration of limited liability partnership firm may be done with the ROC, यानी registration of a company, it should be done with the registration of a company अपॉइंटेड अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के तहत आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं। इट इज नेसेसरी टू फाइल द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना है। कंटेंट्स ऑफ द LLP एग्रीमेंट विद ROC, कंटेंट्स होना चाहिए LLP एग्रीमेंट के और ROC रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी देयर। ओके, नाउ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन द फॉलोइंग मैनर। अब फॉलोइंग मैनर क्या, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। 2 or more पर्सन कम टुगेदर टू फॉर्म LLP, तो LLP अगर आपको फॉर्म करना है तो 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। 2 members फ्रॉम देम टू बी सेलेक्टेड एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, 2 members सेलेक्ट होने चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए। designated partner identification number to be obtained from the Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Corporate Affairs में designated partners के identification number obtain करना है आपको। designated digital signature certificate DSC to be obtained, किधर से obtain करना है, one of the designated partner to be obtained for one of the, ये 2 में से एक के लिए DSC सर्टिफिकेट obtain करना है आपको। नाउ आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड सिग्नेचर सर्टिफिकेट टू बी रजिस्टर्ड विद द वेबसाइट, आपको रजिस्टर करना है वेबसाइट में www.llp.governmentin में रजिस्टर करना है। ओके, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेम availability to be checked and reserving the name of the LLP, आपको नेम अवेलेबिलिटी टू बी चेकिंग करना है, अवेलेबिलिटी है कोई नेम की, एंड रिजर्विंग द नेम ऑफ द LLP, रिजर्व करना है नेम को LLP बाय फिलिंग द फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक आपको फिल करना है फॉर्म। 7th पॉइंट है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट टू बी प्रिपेयर्ड, जो भी कोई इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिपेयर करना है, इज टू बी प्रिपेयर्ड एंड सेम इज रिक्वायर्ड टू बी
filed with the consent, जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर किया है एंड सेम इज टू बी रिक्वायर्ड, और फाइल करना है, कंसेंट लेना है, किसका कंसेंट, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, जो प्रपोज डेजिग्नेटेड पार्टनर है आपके फर्म में, उसका कंसेंट लेके रजिस्टर करना है, इलेक्ट्रॉनिकली आपको रजिस्टर करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर करना है, ओके, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को। सी ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट विल बी स्क्रूटनाइज्ड बाय द रजिस्ट्रार, जो को भी डॉक्यूमेंट है उसकी स्क्रूटनी होगी, कौन करेगा, रजिस्ट्रार, ओके। एंड इफ ही इज सेटिस्फाइड अबाउट द रिक्वायरमेंट, अगर वो सेटिस्फाइड है आपके रिक्वायरमेंट में, कंप्लायंसेस ऑफ द एलएलपी, अगर कुछ भी कंप्लाई करने के जैसा है एलएलपी में, तो ही विल देन इश्यू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फुल कंप्लाई हुआ है, उनके हिसाब से हुआ है, तो बाद में क्या सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, एलएलपी सर्टिफिकेट मिलेगा कि अनकॉर्पोरेशन हो गया आपका एलएलपी का करके। तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द सेड एलएलपी बाय द नेम स्पेसिफाइड देयर इन, वॉट एवर द नेम यू हैव गिवन फॉर द एलएलपी, that it will come into incorporation. So incorporation of the registration section 12. Okay, now next is registered office of LLP. Now what is registered office of LLP? Every LLP must have a registered office to which all communications will be made and received. So LLP यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मस्ट हैव, उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस होनी चाहिए। तो आप कम्युनिकेट कहाँ पे करोगे अगर वो कुछ ऑफिस नहीं है, तो वॉट एवर द कम्युनिकेशन विल बी मेड एंड रिसीव्ड। सो इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एलएलपी टू सफिक्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एलएलपी विथ इट्स नेम, जो कोई भी नाम है आपने बोर्ड के ऊपर लिखा है तो वहाँ पे आपको एलएलपी लिखना है, ओके। तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, ओके। सो एलएलपी में change the name of its registered office and file notice। अगर आपको बाय चांस आगे एलएलपी जो ऑफिस का नाम है जो रजिस्टर्ड हुआ है उसका चेंज करना है, नाम चेंज करना है, तो देन व्हाट यू हैव टू डू, फाइल अ नोटिस ऑफ सच चेंज, सच नेम, सच चेंजेस, जो चेंजेस लाना है नेम में, यू हैव टू फाइल ए नोटिस विथ द रजिस्ट्रार in the prescribed manner and any such change will become effective. So that change will become effective only upon such filing करने से ही effect में आएगा। So contravening the above mentioned provision would attract, अगर कुछ contravene किया है कुछ provisions को, तो what is going to attract, it is going to attract the punishment for LLP and partners and with a fine of 10,000 and 25,000, okay। Now what are the effects of registration? Effects क्या है registration के? So on registration of a LLP by its name becomes capable of, अगर आपका फर्म रजिस्ट्रेशन में हो गया है, इनकॉर्पोरेशन में आ गया है, नाउ इट इज इनकॉर्पोरेशन, रजिस्टर्ड हो गया है, इनकॉर्पोरेशन में आ गया है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, suing and being sued। आपका जो LLP फर्म है, it can be sued and you can also sue others, okay। So you can now acquire the property, you can own the property, you can hold the property, you can develop the property, or you can dispose of the property also, the movable, immovable and tangible and intangible properties, okay। So the third point is here, having a common seal, you will get a common seal if it decides to have one। अगर आप डिसाइड करते हैं कि भाई एक चाहिए, तो हैविंग ए कॉमन सील। Doing and suffering such other acts and things as body corporates may lawfully do and suffer। So whatever you are doing and suffering such other acts and things as body corporates may lawfully do and suffer। See, the effects of registration are this: you will do and you will suffer,
Okay, so these are the effects of the registration. Now we will see name of LLP. It is obligatory for every LLP to mention limited liability partnership or the acronym LLP as the last word of its name. See, whatever the name you are given to your firm, you have to write LLP. Okay, the last word should be LLP here. No LLP shall be registered with an undesirable name or a name identical or nearly resembling that of any other partnership firm or an LLP or a body corporate or a registered trademark or a trademark the application of which is pending. अगर आपके नाम में कुछ भी जो रजिस्टर करने जा रहे हैं अनडिजायरेबल नेम है, कुछ अनडिजायरेबल नेम नहीं होना चाहिए, या नेम आइडेंटिकल है, या कुछ नेम आइडेंटिकल है, और या कुछ रिजम्बलिंग नेम है अदर पार्टनरशिप फर्म के, या फिर और बॉडी कॉर्पोरेट के नेम कुछ है ऐसे रिजम्बलिंग, और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है जो कुछ रिजम्बलेंस है तो, और कुछ पेंडिंग है, तो वो नाम नहीं लिया जाएगा. सम न्यू नेम यानी कुछ अच्छा नाम होना चाहिए आपके फर्म का. एंड फर्म शुड हैव LLP, ये लिखना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट इज reservation of the name. See, an application may be made to the registrar for the reservation of the proposed name. So application should be made to the registrar, okay, for the proposed name of the LLP or change of its existing name. या तो कुछ existing name है आपको change करना है, तो registrar may, if satisfy, subject to the rules of the central government. Okay, if any rules or regulations of the central government, if he is satisfied, reserves the name for a period of 3 months. He can reserve the name for the 3 months. Further, the central government is empowered to give direction to the LLP to rectify or change its name. So central government क्या कर सकता है, उन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डायरेक्शन दे सकता है LLP को, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को, टू रेक्टिफाई करना है, चेंज नेम, जो आपको नाम चेंज करना है रेक्टिफिकेशन होगा उसका. इफ द नेम रजिस्टर इज अनडिजायरेबल, अगर आपने जो नाम रजिस्टर्ड किया है अगर वो अनडिजायरेबल है और सो नियरली रिजेंबल्स टू द नेम ऑफ एनी अदर LLP, अगर वो नाम आपका रिजेंबल हो रहा है दूसरे LLP फर्म से और बॉडी कॉर्पोरेट से और अदर नेम एज टू बी लाइकली टू बी मिस्टेकन फॉर इट, then section 17, any LLP any limited liability partner failing to comply with such direction, अगर जो डायरेक्शन दिया है अगर आपने कंप्लाई नहीं किया है, is liable for punishment with a fine ranging from 10,000 to 5 lakh rupees. Okay, so the punishment for the designated partner for the contravention of provision is a fine ranging from 10,000 to 10 lakh rupees. अगर designated partners ने कुछ provisions को contravene किया है यानी तोड़ा है तो 10,000 से लेकर 10 lakh तक उसको है ना फाइन भरना पड़ेगा. Okay, so we have completed here what is the difference between the LLP and partnership firm, LLP and company, and we have given what is designated partners, उसके लिए क्या क्या provisions है, उसके compliances क्या है. तो we have completed after the incorporation of LLP also we have completed here. So next video we will be taking about partners and their relationships. What are the partners, who are the partners, and what are their relationships. Okay, so we will see you in the next video.